वराली तू आली, आवाज नहीं आली। गुड मॉर्निंग। Good afternoon, sir. अरे वाह, चलो रीड करो। क्या लिखा है पूरा पढ़ो। अच्छा. रीड। Sir, me, right? रीड करो पूरा। Measurement of measurement of time and motion. Prerna and her younger sister are watching a sports channel on television. Prerna enjoys running and she has been declared the fastest runner among the girls in her district for winning the 100-meter sprint at an inter-school competition held at uh, held at the district level. She is now training to compete at the state level. She dreams of representing India at the international level in 100-meter sprint contests in future. एट द इंटरनेशनल, हर एक वर्ड पढ़ना है, ठीक है पढ़ो। सर ये भी मैं ही पढ़ना है? Okay. While watching the rerun of sprints at the Olympic Games held in the past, Prerna is always amazed that the measurement of the time taken for the race is so advanced that they could identify the winner even when two sprinters seem to cross the finish line almost together. However, in her school, the sports teacher only used a special kind of watch called a stopwatch for timing the school races. She had noticed her mother wearing a watch on her wrist and her sister looking at her mobile phone while she needed to check the time. Her uncle used a braille watch and had recently acquired a talking watch that announced the time at the touch of a button. There was also a large clock on the wall near the school entrance. Her thoughts turned to people in the ancient past who did not have the modern gadgets we have today, and she wondered. सर स्क्रीन पर दिख नहीं रही है. क्या हुआ? स्क्रीन बराबर नहीं दिख रही है. The right side is not looking clear. क्या दिख रहा है? अभी थोड़ा ब्लर हुआ है. हाँ. Human got अरे interested वो in ऊपर keeping पढ़ो, track of ऊपर क्या time. लिखा है? How was time measured when there were no clocks and watches? अब तो बताओ, कैसे मैंने करूँ पहले के ज़माने में? ये तो uh, सोचो। जंतर मंतर का नाम सुना है? no, sir. ठीक है पढ़ो। Measurement of time. Human got interested in keeping track of time long ago.
They started noticing that many events in nature repeat themselves after definite intervals of time. For example, the rising and setting of the sun, the phases of the moon, and the changing seasons. They started using the cycles of these events for timekeeping. First, they devised calendars. A day was defined by the cycle of rising and setting of the sun. Then began the quest to find ways of knowing the time of day. So they made many devices which helped them to measure smaller intervals of time within a day. Sometimes of these, some of these were sundials, हाँ, सन डायल। uh, सन डायल देखो यहाँ पे। sundials, क्या है वो, देखो ड्राइंग में क्या दिख रहा है। uh, शैडो जहाँ गिरा वो टाइम है। what sir? सन डायल वो होता है जिसमें शैडो। पढ़ो पढ़ो, डायग्राम में देखो क्या। Sundials, हाँ। water clock, hour glasses, and candle clocks. In a sundial, time is determined with the changing position of the shadow of an object cast by the light of the sun during the day. The water clocks used the flow of water out of out or into a vessel to measure time. In one type, water flowed out from a vessel which had markings for time. In the other type, there would be bowl with a fine hole at the bottom, which was floated on the surface of water. It gradually filled up in a fixed time um, and एंड uh, finally sank. Then it was lifted up and floated again. In an hourglass, time was measured on the basis of the flow of sand ये गूगल में from डायग्राम one दिख by रही है सबका। डायग्राम दिख रहा है ना। yes sir. पढ़ो। Candle clocks were candles. पढ़ो पढ़ो। Candle clocks were candles with markings that indicated the passage of time when burned. हम्म, तो ये सब यूज़ करते थे। Fascinating facts. The world's largest stone sundial, the Samrat Yantra, was built around 300 years ago at the Jantar Mantar in Jaipur, Rajasthan, a UNESCO World Heritage Site that houses several astronomical instruments. With its imposing height of meters, its shadow moves at about 1 millimeter per second and falls on scale finally marked
to measure time intervals as short as 2 seconds. Like any sundial, it measures local or solar time requiring a correction to determine Indian Standard Time. हाँ, तो Should we make a इससे क्या simple समझ में water clock? इससे क्या तुमको समझ में आया बताओ, जंतर मंतर के बारे में, सम्राट यंत्र। अच्छा, द वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट संडायल है वो सम्राट यंत्र। बोलो। The world's largest सम्राट यंत्र, यानी कि संडाल जो सम्राट यंत्र which was built around 300 years ago at Jantar Mantar in Jaipur, Rajasthan, a UNESCO World Heritage Site that houses several astronomical instruments with its imposing height तुमने रीड करो, of तो क्या two. समझी वो बताओ मुझे। यानी कि जो एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहता है ना, हम्म, सॉरी मतलब जो विथ इट्स इम्पोजिंग हाइट ऑफ, क्या समझ में आया तुम्हें? हाँ, कुछ कुछ नहीं बोल रही तुम, ये नहीं सर समझा, 1 मिनट। कुछ भी नहीं समझा। ये चाइना में है कि कहाँ पे है ये जंतर मंतर? राजस्थान। चलो एक बात समझ में आई, वेरी गुड। कुछ और सोचो, और क्या समझ गए? व्हाट्सअप। और क्या समझी? और क्या बोलते हैं ये, कुछ भी नहीं समझी? क्या क्या समझा तुमने, ये क्या चीज़ है? वहाँ जाके देखना करके है। कि जो हेरिटेज साइट जिधर वो है ना, वो क्या उधर होता है हाउसेस सेवरल हाउसेस है? एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हैं। इसका मतलब क्या हुआ? और व्हाट्सअप, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या हुआ? जो एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं ना। एस्ट्रोनॉट्स यूज़ करते हैं? बिल्कुल नहीं। एस्ट्रोनॉट्स एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ करते। हाँ। एस्ट्रोनॉट अपना जैकेट पहन के जाते हैं, वो सिर्फ अपने रॉकेट को यूज़ करते हैं बस। कंप्यूटर यूज़ करते हैं व्हाट्सअप। वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमी, आकाश की स्टडी करना, उसके लिए कुछ चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स, टेलीस्कोप जैसा, है ना? अच्छा, फिर इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट 27 मीटर्स। और 27 मीटर। तुम्हारी हाइट कितनी है? कितनी मीटर? मेरी हाइट
एक मीटर कितना लंबा होता है बताओ, बोलो। इतना तो रहना चाहिए। एक मीटर कितना लंबा होता है, दिखाओ। मीटर। अच्छा, तो स्केल लेके आओ अपना। स्केल में कितना मीटर होता है? स्केल छोटा वाला बड़ा वाला दोनों लेके आओ। मेजरिंग टेप है तो वो लेके आओ। ये क्या लिखा है उसमें, कितना लिखा है उसमें लेंथ, इसको क्या बोलते हैं मैम? सौ मीटर की सेंटीमीटर। नहीं, ये जो तुम्हारे हाथ में है स्केल, इसको मराठी में क्या बोलते हैं? पट्टी। नहीं, कुछ और बोलते हैं। सर वापस एक बार बोलोगे? आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा है। मराठी में इसको क्या बोलते हैं? इस जो पट्टी है उस पट्टी को क्या कहते हैं? फुट पट्टी। चलो, फुटपट्टी। फुट पट्टी। फुटपट्टी। तो ये 1 फुट हुआ ना। हाँ। तो देखो वो 1 फुट में कितने सेंटीमीटर है? 30 सेंटीमीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सेंटी मतलब 100 से डिवाइड करना, सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है। अब तुम्हारे एक हाथ स्ट्रेट करो, ऐसे सीधा करो, अपना हाथ का यस मेजरमेंट सर। लो पूरा। कितना सेंटीमीटर होगा मेजरमेंट? टोटल शोल्डर। हाथ का मेजरमेंट लो पहले पूरा, मेजर करो कितना सेंटीमीटर है। फिंगर टिप से शुरू करो, पूरा मेजर करो हाथ। आधार, अरे कैसे मेजर करोगी? स्केल से देखो, करो करो। ये हो गया 30, ये हो गया 30, और करो 30। इतना। पूरा हाथ, ये तो हाफ हाथ कर रही हो तो। हाँ, कितना सेंटीमीटर है? तो अगर कम पड़ेगा ना, 100 तक पहुंचना है, कम पड़ेगा तो यहाँ से ले जाके दूसरा हाथ तक जाओ। कहाँ तक जाते हैं 100 देखो।
100 चाहिए मुझे। तो अभी वो आएगा ना, अ, ये दशहरा, तो वो तोरण हाँ। बेचती है मावशी लोग। वो लोग ऐसे खींचते हैं हाथ ऐसे, 1 मीटर। देखो तुम्हारा हाथ कहाँ तक जाता है, 1 मीटर। स्केल कहाँ गया, स्केल से करो। 90 कहाँ पे होगा देखो। फिंगर टिप से शुरू करो, यहाँ से नहीं, फिंगर टिप से शुरू करो। किधर तक? अरे तुम्हारा हाथ यहाँ से शुरू होता है ना, कि यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। करो, स्टार्ट करो। बट आप नंबर क्या बोल रहे हैं? 100 सेंटीमीटर ना। करो। 100 चाहिए, 100। फिर ये हाथ से यहाँ, ये दूसरे हाथ तक जाओ। हम्म, इधर कहाँ तक। तक होएगा? तो वो मावशी लोग ऐसे धागा खींचते हैं ऐसे, एक हाथ से खींचते हैं, बोलते हैं ये देखो यहाँ तक है। कहाँ तक तुम्हारा आ जाएगा 1 मीटर? 1 मीटर। तो तुम्हारा बॉडी कितना मीटर है, पूरा बॉडी? पूरा बॉडी, बॉडी हाइट, तुम्हारी बॉडी की हाइट, हाथ की नहीं। बॉडी का मेजर करो, सिर से लेके पैर तक। खड़े होके दीवार पे अपना हाइट माप लो, और वो हाइट को दीवार पे मेजर कर लो। सिंपल। पीछे, सोफा के पीछे, ताकि दिखाई दे। सोफा के पीछे रख देते, हाँ। दीवार पे खड़े होके अपना ऐसे सिर रखो, और फिर वहां तक मेजर करो। पहले देखो कहाँ तक है। हाँ, वहां तक सिर रखो, और फिर वहां से मेजरमेंट चालू करो। कितना सेंटीमीटर है? 100 मीटर रहेगा तो एक एक 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है। अभी सेम हाइट को मेजरिंग टेप से मेजर करो। स्केल से भी करो, मेजरिंग टेप से भी करो। हाँ। मेजरिंग टेप से भी मेजर करो। टेप टेप। सेंटीमीटर और इंच देखना, सेंटीमीटर होना चाहिए।
140 140। सेंटीमीटर। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, 140 है, बैठ जाओ। तो कितना मीटर हुआ? 140 हाउ मेनी मीटर्स? बताओ। 140 क्या है वो? सेंटीमीटर। हाँ, तो कितना मीटर हुआ? 140। एक मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर? क्या सर? मैंने बताया ना अभी, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सेंट, सेंचुरी। सेंट मतलब 100, लिखो बुक में लिखो, सेंट मतलब 100। सेंटीमीटर मतलब मीटर के 100 पार्ट। तो सेंटीमीटर क्या होता है? मीटर का 100 पार्ट। तो कितने सेंटीमीटर बनेंगे एक मीटर? 100। ठीक है, समझी? हम्म, लिखो। तो अब 140 मीटर कितना 140 सेंटीमीटर कितना मीटर होगा? 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, 1.4 मीटर। समझ रहे हो? व्हाट सर? 140 सेंटीमीटर कितना मीटर होगा? 100 मीटर इज 1 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर। सो 140 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 100 सेंटीमीटर 140 सेंटीमीटर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। समझी? क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। हो रहा है? नहीं। देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है तुमको व्हाइट बोर्ड? व्हाट सर? तुम्हें क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 140 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, एंड दैट इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। समझी? सर एक्स का मतलब क्या? अननोन वैल्यू। कोई भी चीज़ हमें नहीं पता है, तो हमने उसको एक वैल्यू ले लिया, एक्स मतलब एग्जाम्पल। अब क्या आएगा? तुमने क्या लिखा? लिखाओ, क्या लिखा? बोलो क्या लिखा?
मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, क्या लिखा बताओ? दिखाओ क्या 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 लिखी, स्क्रीन पे दिखाओ। हाँ तो 100 इंटू एक्स, नहीं 100 इंटू तुमने क्या लिखा है, देखो मैं दिखाता हूँ देखो। 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 140 इंटू 1। कहाँ गया? 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 140 इंटू क्या आएगा, बोलो? बुक में क्या लिखा है तुमने देखो। 100 multiplied by x is equal to 140 multiply. तुम्हारी बुक में क्या लिखा है, क्या लिखूँ इसमें से मैं? 140 में मैंने अभी 100 multiplied by डायरेक्ट नहीं, उसके क्वेश्चन मार्क ऊपर करके। जहाँ मैंने क्रॉस क्या? मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई में मुझे क्या लिखना चाहिए? 145 इंटू वॉट, क्या लिखूँ मैं? 1 centimeter is equal to 1 meter. 140 centimeter is equal to x. क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना मैंने, 100 और एक्स को मल्टीप्लाई किया ना, कहाँ से किया? हाँ, तुम्हारे पास बुक में लिखा है, कहाँ से किया देखो, बुक में क्या ये लिखा? मैंने नहीं लिखा है। 100 इंटू एक्स मैंने कहाँ से लिया? तुम्हारी बुक में लिखा है देखो। और आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, जो 100 सेंटीमीटर इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया है। हाँ तो 140 के साथ क्या आएगा? 100 क्या आएगा देखो, उसमें क्या लिखा है? क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इंटू एक्स किया ना, हाँ, तो और कौन सा किया है? और एक भी नहीं। तुम्हारे बुक में मैंने ऐसे लिखा है ना, 100 इज 1, हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ, 140 इज एक्स। एक, ठीक है, तो 100 को हाँ, मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया ना, हम्म, इज इक्वल टू 140 इंटू वॉट, बोलो? 100 इंटू एक्स, तो 140 इंटू वॉट, ये बताओ।
100 को x किया, समझी, हाँ। इज इक्वल टू 140 इंटू वन ना। तभी तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, समझी नहीं समझी। 1 कहाँ से आया सोनाली, 1 कहाँ से आया? कौन सा? 140 इंटू वन कहाँ से आया? 140 इंटू वन 1 मीटर से, सॉरी, 140 सेंटीमीटर से 1 मीटर। नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो तुमको मैं नेक्स्ट टाइम में कराऊंगा। अभी मुझे बताओ, चलो बैक टू दैट वर्क। तो ये जंतर मंतर कितना बड़ा है? जंतर मंतर का वो साइज कितना है, सम्राट सनडायल का? 27 मीटर्स कुछ थे। तो तुम्हारा हाइट कितनी है? 2 मीटर से भी कम। कोई भी इंसान का हाइट 2 मीटर से कम होता है ना, राइट? हाँ। इतना बड़ा है वो। चलो आगे पढ़ो। हम्म। सर एक्टिविटी ना। हम्म, अच्छा वो कितना सेंटीमीटर एक्टिविटी। मेजर कर लेते हैं वहाँ पे जंतर मंतर में? कितने सेकंड्स का टाइम मेजर कर सकते हैं कम से कम? बोलो। तुमने पढ़ा ही नहीं, पढ़ो। 2 सेकेंड्स। हाँ, और हमारी घड़ी में हम लोग कर सकते हैं 1 सेकेंड। ये कर सकते बिना घड़ी के, इसने ये बिल्डिंग से हो गया था 2 सेकेंड्स। सर रीड करो। रुको, हाँ, रीड रीड करो। रीड नहीं करो क्योंकि अब भी 2 मिनट रह गया है, देखो टाइम लेस देन 1 मिनट रह गया है। तो अभी तुमको मैं पीडीएफ भेजता हूँ, रीड करो, फिर से हम करेंगे शाम को, ठीक है? ओके, कभी? शाम को फिर से करेंगे। कितने बजे? तुम रीड करो कि मुझे बताओगी तब मैं करूँगा ना। अच्छा, चलिए। ठीक है, मैं पीडीएफ भेजता हूँ। यस सर।